Hello guys, I, Aro Sadia, welcomes you to my YouTube channel AS Classes. I hope all of you are doing well. In today's class, we are going to start with our CTP series. So, as all of you know, CTP holds a very important portion when you are preparing for any teaching exam. Whether it's your first grade, second grade, REET, CTET, NET, or any teaching exam, CTP holds a very important place. It is of 30 marks in your REET, and in every teaching exams, CTP is very important. Questions were asked from this CTP. So, for all the English medium students, there is one problem that they are not getting enough materials of CTP in English. So here I am to help you out with your CTP, as I am going to provide you all the CTP content in English in lectures and as well as in the form of handwritten notes. So if you people like my videos and content, then please do like, share and subscribe my channel, and also suggest my channel to your near and dear ones who require videos like this. And all those viewers who are new to my channel, please do press the bell icon and subscribe my channel. So in today's class, we are going to start with CTP, as CTP is very important and as well as it's very scoring. Right, CTP बहुत scoring है, because if you get the concepts clear, then you can score really good marks in it. So from today, we are going to start with CTP series, in which we are going to include all the theories, psychology, everything related to CTP, which will be beneficial for you for your examination. So in today's lecture, we are going to start with our introductory class on educational psychology. So today we are going to start with educational psychology, and in this class we are going to discuss about what is psychology, what is educational psychology, and schools of psychology, as they are very important. 2 to 3 marks questions will be asked from this unit, so it is important. So let's start with it. So before starting and understanding this educational psychology, first we have to understand what is psychology. Psychology जो है वो है क्या? So psychology, etymological meaning of psychology. Psychology क्या है? एक Greek word है और ये 2 वर्ड से मिलके बनी है, psyche and logos. Psyche means soul and logos means study. So psychology, collectively known as study of soul initially. Initially, psychology is regarded as the study of soul. Right? Aristotle and Plato approved this concept. Aristotle जो थे और Plato थे, उन्होंने इस concept को approve किया है. किस concept को? That psychology is the study of soul. Psychology किसकी study है? आत्मा की study है. Right? Then साइकोलॉजी वर्ड फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय, ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, इसको पहली बार किसने यूज किया है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है. इट्स रुडोल्फ गोकल इन 1590. रुडोल्फ ने पहली बार साइकोलॉजी वर्ड का यूज किया था. राइट. साइकोलॉजी इनिशियली वॉज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी. साइकोलॉजी शुरू से एक सेपरेट ब्रांच नहीं था, ये पार्ट था किसका? फिलोसफी का. एंड आफ्टर सम टाइम, with the passage of time, it gets separated from philosophy. Right? इतना आपको समझ में आ गया. साइकोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी is a Greek word which is made up of 2, that is psycho and logos. Logos means study and psycho means soul. So collectively known as the study of soul. And this concept was also approved by Aristotle and Plato. And after that, psychology जो है, इस वर्ड को सबसे पहले किसने यूज किया था? रुडोल्फ. Now, what is educational psychology? अब हम देखते हैं कि educational psychology actually में है क्या. ठीक है. फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हम किसको बोलते हैं? E.L. थॉर्नडाइक. E.L. थॉर्नडाइक, आपने सबने इनका नाम सुना होगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो ही इज वेरी फेमस एंड he was regarded as a father of educational psychology. हम इनकी जो थ्योरी है, लॉ ऑफ इफेक्ट, वो लेटर ऑन पढ़ेंगे when we are doing theories. Right?
So, guidance process which helps all round development of a child. Education psychology क्या है? ऐसा guidance process जो overall development जो है बच्चे का उसको करने में help करता है. Overall development उसका बेटा कुछ भी हो सकता है. It could be cognitive development, moral development. ओके किसी भी तरीके का डेवलपमेंट जो कि बच्चे में हो रहा है उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या है? एक एजुकेशनल साइकोलॉजी है. एंड साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सोल. नाउ आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट साइकोलॉजी, what is its meaning, educational psychology, now let's have a look on the thoughts ऑन साइकोलॉजी. तो सबसे पहला थॉट हम देखते हैं कि एरिस्टोटल जो है हमारे, उनके क्या थॉट्स हैं साइकोलॉजी के बारे में. एरिस्टोटल को हम अरस्तु भी बोलते हैं हिंदी में, ऑफन रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइकोलॉजी. एरिस्टोटल जो है उनको हम क्या रिगार्ड करते हैं? फादर ऑफ साइकोलॉजी. ऑफन इनको रिगार्ड किया जाता है, बट एक्चुअली में अगर हमसे क्वेश्चन आए हु वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, सो इट इज विलियम वुंट. विलियम वुंट इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ psychology. Then we have discussed about father of educational psychology, that is Thorndike. Now एरिस्टोटल जो है उन्होंने अपना क्या व्यू दिया कि साइकोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल. जहां हम सोल की स्टडी कर रहे हैं, साइकोलॉजी इज दैट. साइकोलॉजी इज मेयर द स्टडी ऑफ सोल. इन्होंने अपनी एक बुक लिखी बेटा जिसका नाम है डी एनीमिया. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये ऐसी पहली बुक है जो किस पे लिखी गई है? साइकोलॉजी पे. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट बुक डी एनीमिया जो किसने लिखी है? एरिस्टोटल ने. और ये फर्स्ट बुक है जो किस में लिखी गई है? साइकोलॉजी के ऊपर लिखी गई है. उसके बाद हम दूसरा व्यू देखेंगे जॉन लॉक का. इन्होंने क्या बोला? अब साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइंड. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? साइकोलॉजी वाज द स्टडी ऑफ सोल. नाउ साइकोलॉजी हैज बिकम द स्टडी ऑफ माइंड. Mind of a child is tabula rasa. Tabula rasa is a blank slate. जॉन लॉक क्या बोलते हैं कि जो बच्चा है उसका दिमाग कैसा है? एक ब्लैंक स्लेट है. बच्चा कैसा है? उसका माइंड एक बिल्कुल ब्लैंक स्लेट, एक गीली मिट्टी है. हम उसको जैसा आकार, जैसा शेप देना चाहेंगे वो वैसा बन जाएगा. हम उसको जो बनाना चाहते हैं, जो हम उसके दिमाग में फील करना चाहते हैं वो कर सकता है. उसके बिहेवियर के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट अ चाइल्ड नीड्स, राइट. हम इसको किस तरीके से इसके बिहेवियर के बेसिस पे, इसके बिहेवियर को एनालाइज करके हम इसको मोल्ड कर सकते हैं. तो वो यही बोलते हैं कि बच्चे का माइंड जो है वो कैसा है? टेबुला रासा. दैट इज ब्लैंक स्लेट है. उसको हम मोल्ड करके कुछ भी बना सकते हैं. हम उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. उसके बिहेवियर को जब हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हम उस चाइल्ड के लिए हेल्प कर सकते हैं, उसको जो भी करना है उसमें. ठीक है. ये जो है जॉन, ये क्या है? एक बिहेवियरिस्ट है, इसलिए इनके थॉट क्या है? ये बिहेवियर को बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, राइट. अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ? साइकोलॉजी बिकेम अ स्टडी ऑफ माइंड. पहले साइकोलॉजी क्या थी? स्टडी ऑफ सोल अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. फिर साइकोलॉजी क्या बन गई? स्टडी ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक. ठीक है. थर्ड वन, वुड्सवर्थ. ठीक है. ये बेटा एक बिहेवियरिस्ट है, जैसे कि थे हमारे जॉन लॉक. फिर आता है, इन्होंने दिया क्या है? इन्होंने दिया है SOR बॉन्ड. अब ये SOR बॉन्ड है क्या? स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स. ठीक है. स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स. अब ये है क्या? देखिए, एक टॉमी है एंड वन इज हिज ओनर. ठीक है. अब ओनर जो है वो टॉमी को आवाज लगा रहे हैं, टॉमी कम है, बट टॉमी जो है उसका पेट भरा हुआ है एंड ही इज नॉट लिसनिंग टू हिज ओनर. समटाइम ही लिसन्स एंड समटाइम्स ही डजंट. ठीक है. व्हेन ही इज हंग्री एंड द ओनर कॉल्स हिम, he ran away, and when he is not hungry and the owner calls him, so he doesn't run away. So this depends on Tommy's behavior, his feelings, whether he wanted to go when the owner is calling or whether he don't want to go when the owner is calling. So ये किसकी feelings पे depend कर रहा है? टॉमी की. जब उसको ओनर आवाज दे रहा है वो उसके पास जाता है या नहीं जाता है, ये किसकी फीलिंग्स पे डिपेंडेंट है? किसके बिहेवियर पे डिपेंडेंट है? टॉमी के. यहाँ पे स्टिमुलस जो है आवाज, वो जरूरी नहीं है कि टॉमी आवाज सुनते ही किसके पास जाएगा? ओनर के पास. ये उसकी विश है, उसकी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है कि वो उस ओनर के पास जाता है या नहीं जाता है. ये है आपका SOR
बॉन्ड। आई होप इट इज क्लियर। और ऐसा ही हमारे टोलमैन ने दिया था, जिन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स दिया था, और इन्होंने ये कहा था कि अगर ओनर कॉल करता है, आवाज लगाते हैं टॉमी को, तो टॉमी हैव टू कम। ठीक है, टॉमी जो है वो रिएक्ट करेगा ही करेगा और आएगा। जबकि हमारे जो वर्ड्सवर्थ है उन्होंने क्या बोला कि ये उसकी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है, वेदर ही वांटेड टू गो और नॉट। अगर उसका पेट भरा हुआ है एंड ही वाज सिटिंग आइडली और रेस्टिंग, तो व्हाई वुड ही गो? ठीक है, एंड व्हेन ही इज हंग्री एंड व्हेन हिज ओनर इज कॉलिंग हिम, देन डेफिनेटली ही विल रन टू हिम। सो ये किसकी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है? हमारे टॉमी की। तो ये इनका था SOR बॉन्ड। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किसने किया था? JB वॉटसन ने। उसके बाद इनका एक कोट है जो कि बड़ा ही फेमस है और ये इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इज सोल। हमने जैसे पढ़ा था थॉट, सबसे पहला थॉट जो था हमने पढ़ा था एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल ने क्या बोला था? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट जॉन लॉक एंड व्हाट ही सेड? ही सेड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। अब जो हम तीसरा पढ़ रहे हैं वर्ड्सवर्थ, ये क्या बोल रहे हैं? पहले साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा खो दी, फिर साइकोलॉजी ने अपना दिमाग भी खो दिया। देन इट्स माइंड, देन लॉस्ट इज कॉन्शियसनेस भी खो दी। इट स्टिल हैव बिहेवियर ऑफ अ सॉर्ट। इसके पास, साइकोलॉजी के पास क्या बचा है? बिहेवियर। ही वॉज अ बिहेवियरिस्ट। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस पे देते हैं? बिहेवियर पे, कि बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो इनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस पे है? बिहेवियर पे। अब ये क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी को इन्होंने क्या बोला है कि स्टडी है किसके? मेंटल पीसेस की एंड बिहेवियर की। हम बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। अब ये जो बिहेवियर है ये भी हमारा 3 तरीके का हो सकता है। कॉन्शियस बिहेवियर जो हम जान के कर रहे हैं, सबकॉन्शियस हमें पता भी है और अननोइंगली, ठीक है, और अनकॉन्शियस जो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है और हमने कोई चीज कर दी, दैट इज अनकॉन्शियस। ठीक है, तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ये 3 तरीके के बिहेवियर्स की स्टडी करती है कौन? साइकोलॉजी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। Schools of psychology, the first school of psychology is structuralism. Structuralism, founder of structuralism कौन थे बेटा? विलियम वुंट। विलियम वुंट को हमने ये भी बोला है, फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोला गया है, और ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहलाते हैं विलियम वुंट। ये क्वेश्चन से आ सकते हैं आपसे। Who was the father of experimental psychology? William Wundt. Who was the father of psychology? William Wundt. Who was the father of educational psychology? Thorndike. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आता है स्ट्रक्चरलिज्म। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, विलियम वुंट जो है वो फाउंडर है किसके? स्ट्रक्चरलिज्म के। इस स्कूल को स्टार्ट किसने किया? विलियम वुंट ने। ये जो है इनके फॉलोवर कौन है? टिचनर। टिचनर जो थे इनको फॉलो करते हैं, मतलब इनके व्यूज को वो मानते हैं और आगे और उसको वर्क करते हैं। फिर फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब जो ओपन किया है वो विलियम वुंट ने किया है, जहां पे क्या है? मेयरली साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, किनके ऊपर? ह्यूमंस के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर, ताकि हम उनके बिहेवियर, उनकी जो चीजें हैं, उनके जो भी स्टडी हमें करनी है उनसे रिलेटेड, वो हम कर सकें यहाँ पे, राइट। अब देखिए यहाँ पे आगे कंप्लीटली डिवोटेड टू साइकोलॉजिकल स्टडी, स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। ह्यूमन और एनिमल्स पे इन्होंने क्या है? एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। पर्सन रिस्पॉन्स फॉर वेरियस स्टिमुलाइज लाइक साउंड एंड कलर। पर्सन जो है हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? स्टिमुलस आ रही है, अगर हमें कोई साउंड आ रही है या कोई कलर देखकर हम उस पर कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? जैसे कि सपोज साउंड आ रही है तो हम जनरली जो एक्सपेरिमेंट्स है उसमें पढ़ते हैं, तो साउंड से क्या है? खाने का रिलेशन होता है, तो डॉग कैसे लाइवेट करने लग जाता है, तो वो हो रहा है या नहीं? ये आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, राइट। तो और ये साउंड से हम कैसे करते हैं? अगर हम ह्यूमंस हैं, पर्सन्स रिस्पॉन्स, तो हम साउंड से किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं वो हम देखते हैं, वो स्टडी करते हैं हम इस एक्सपेरिमेंट में, राइट। फिर आप देख सकते हो कलर से, जैसे कि रेड कलर है तो उसको लेकर हमारे माइंड में एक वो बना हुआ है, कलर ऑफ डेंजर, राइट। तो उससे हम कैसे रिएक्ट करते हैं ये हम इसमें देखने वाले हैं। फिर ह्यूमंस हैव सर्टन इनबिल्ट स्ट्रक्चर्स इन द ब्रेन टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। सर्टन स्ट्रक्चर्स जो हैं ऑलरेडी हमारे ब्रेन के अंदर बिल्ड होते हैं, जिसको हम
रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गरम गरम कुछ भी कंटेनर है, ठीक है, गैस से उतारा है कोई कंटेनर एंड इट्स सो फ्रीकिंग हॉट, और आपने उसे टच कर लिया, तो जैसे ही आपने टच किया आप फटाफट उससे अपना क्या है हाथ हटा लेते हो। तो वो क्या है, आपने फटाफट उसको रिस्पॉन्स दिया, अब आपके माइंड में वो चीज सेट हो गई कि अगर मैंने कोई गर्म चीज को टच कर दिया तो मुझे क्या इंस्टेंटली उसको वहां से हाथ हटा लेना है, अपने आप को वहां से रिमूव कर लेना है। तो ये क्या है, सर्टेन स्ट्रक्चर्स हैं जो ब्रेन खुद भी रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। फिर आता है ब्रेन अप्लाइज दीज प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स टू रिस्पॉन्ड। वो एक बार जो चीज हो गई फिर उसको ब्रेन यूज करता है ताकि वो आगे भी अगर ऐसी कोई चीज दोबारा हो तो उस पर रिस्पॉन्ड कर सके, राइट। फिर आती है ये टेक्निक, इन्होंने कौन सी टेक्निक यूज की, इंट्रोसेप्शन टू एनालाइज द इनर प्रोसेसेस ऑफ माइंड। जो माइंड है उसके अंदर क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं उसको स्टडी करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट स्कूल स्ट्रक्चरलिज्म। इसमें आपको ये याद होना चाहिए, इसके अंदर हम क्या है, माइंड में जो है वो कुछ सर्टेन स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर इसको फाउंडर कौन है, इनके फाउंडर के फॉलोअर कौन है, और इसमें हुआ क्या है। बेसिकली हम स्टिमुलस को देख रहे हैं कि स्टिमुलस से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है ह्यूमन पे, ठीक है। और ये जो विलियम वुंड है, इन्होंने क्या किया था, एक पहली लेबोरेटरी स्टार्ट की थी, कहां पर, यूनिवर्सिटी ऑफ लेपिस जर्मनी के अंदर इन्होंने स्टार्ट की थी, जो कि कंप्लीटली साइकोलॉजिकल स्टडीज पे ही फोकस करती है, ठीक है। सेकेंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इज फंक्शनलिज्म, फर्स्ट इज स्ट्रक्चरलिज्म, नाउ सेकेंड वन इज फंक्शनलिज्म। फाउंडर कौन है इनके, विलियम जेम्स। ट्राई टू स्टडी वेरियस फंक्शंस ऑफ ब्रेन। विलियम जेम्स जो इन्होंने क्या कोशिश की कि हम जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं ब्रेन के उसको पढ़ सके, राइट। फोकस ऑन द स्टडी ऑफ व्हाट ब्रेन डज। इनका मेन फोकस किस चीज पे, कि ब्रेन जो है वो क्या कर सकता है, ठीक है, व्हाट ब्रेन डज। तो इनका फोकस, इनकी सारी स्टडी का फोकस किस पे, कि ब्रेन क्या क्या चीजें कर सकता है। मॉडर्न डे साइकोलॉजी फादर, इनको विलियम जेम्स जो इनको मॉडर्न डे साइकोलॉजी फादर भी कहा जाता है। फिर 1890 के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नाम की इन्होंने एक किताब दी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसका नेम हमें लर्न होना चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बाय विलियम जेम्स। आफ्टर दैट आवर थर्ड स्कूल इज साइकोएनालिसिस। सिगमंड फ्रेड, फादर ऑफ दिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इस स्कूल के फादर, इस स्कूल के फाउंडर साइको एनालिसिस के कौन है, सिगमंड फ्रेड। इनके जो फॉलोअर्स है उनका नाम है एडलर एंड जंग। ये याद होना चाहिए कि इनके फॉलोअर्स कौन है, जिन्होंने इनके ही कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाया, दैट इज एडलर एंड जंग। फिर सिगमंड फ्रेड जो है, ये तीन इस कॉन्सेप्ट पे मानते हैं कि ह्यूमन का माइंड जो है वो तीन एलिमेंट से कंपोज होकर बनता है, द ईगो, इट एंड सुपर ईगो। इस तीनों कॉन्सेप्ट को हम इनकी थ्योरी में पढ़ेंगे जब हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन आवर फर्दर क्लासेस। फाउंडर दैट ड्रीम्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ आवर अनकॉन्शियसनेस। ड्रीम्स क्या है, रिफ्लेक्शन है। हम जब अनकॉन्शियसली कोई चीज सोचते हैं तो वो उसी चीज का रिफ्लेक्शन है, क्या, ड्रीम्स। डिस्क्राइब दीज ड्रीम्स इन हिज बुक। इन्होंने ये जो ड्रीम्स है इनको डिस्क्राइब भी किया है एक बुक के अंदर। उस बुक का नाम क्या है, इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम। और ये बुक कब आई है हमारी, 1899 के अंदर। सो अब हम थ्री स्कूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म एंड साइको एनालिसिस। इसमें आपको ये याद होना चाहिए कि इसका फाउंडर क्या है, बेसिक इनके थॉट क्या है और इनके फॉलोअर्स क्या है, राइट। Fourth one is behaviorism. As its name suggests, most stress was laid on behavior, right? इसके फादर कौन है, जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, किसके ऊपर, एल्बर्ट और टॉय पे। अब इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, जेबी वॉटसन हैज इंट्रोड्यूस एल्बर्ट विद अ टॉय। व्हेनेवर एल्बर्ट उस टॉय को पास जाता है, उसको टच करता है, तो जेबी वॉटसन क्या करते हैं, एक फ्राइटेंड वॉइस चला देते हैं, जिससे एल्बर्ट क्या है, डर जाता है। एल्बर्ट को ये लगता है जैसे ही मैं इस टॉय के पास जाऊंगा एक वॉइस आएगी, या बिना वॉइस के भी एल्बर्ट के मन में एक कंडीशनिंग हो जाती है कि इस सॉफ्ट टॉय से मुझे डर लगता है, मुझे सॉफ्ट टॉय के से दूर रहना है। तो ये क्या है, जब एल्बर्ट जो है उसको वो टॉय को देखते ही डर लगने लग जाता है। तो यहाँ पे जेबी वॉटसन ने क्या किया, उन्होंने उस बच्चे के माइंड के अंदर क्या कर दी, कंडीशनिंग कर दी कि तुम्हें सॉफ्ट टॉय के पास जाओगे, वो जहां भी जाता है और वो उसको टच करता है तो वो अलग अलग तरीके की वॉइस चला देते, तो उससे एल्बर्ट के मन में क्या है, डर बैठ जाता है। और भले ही वॉइस आए या ना आए सॉफ्ट टॉय को टच करने के लिए, एल्बर्ट क्या है, उससे डरने लग जाता है। तो इस
इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है बेटा, दो स्टिमुली आए होते हैं, एक तो क्या है टॉय और दूसरा क्या है साउंड, और ऐसे ही रिस्पॉन्स भी दो आएंगे, क्या आएगा, एक तो टच और फियर, दो तरीके के रिस्पॉन्स है। हैंस इट मीन्स ड्यू टू कंडीशनिंग, इन्होंने एल्बर्ट की क्या करी, कंडीशनिंग करी, एल्बर्ट कनेक्ट हिज फियर विद द टॉय। यहाँ पे क्या होता है, कंडीशनिंग के कारण एल्बर्ट क्या कर लेता है, टॉय से अपने आप को क्या कर लेता है, डर बैठा लेता है टॉय का। तो होता है ना, हमें किसी को एनिमल्स का डर होता है, भले ही वो हमें हार्म नहीं कर रहे हैं बट फिर भी हमें उनसे क्या है, डर लगता है। तो ऐसे ही एल्बर्ट की भी क्या है, कंडीशनिंग हो जाती है और वो अपना फियर किससे कनेक्ट कर लेता है, टॉय के साथ, राइट। इवन इफ फियरफुल साउंड वॉज एब्सेंट, भले ही साउंड हो या ना हो बट एल्बर्ट क्या है, फियरफुल हो जाता है फ्रॉम टॉयज। तो दिस इज कॉल्ड कनेक्टिविज्म, उसने कनेक्ट कर लिया कि भले ही आवाज आए या ना आए पर इस चीज से मुझे क्या है, डर लगता है। नाउ वॉटसन ने 1926 में, इनका एक कोट बड़ा फेमस है, इन्होंने कहा आप मुझे कोई भी दे दो, मैं उसको जो चाहे बना सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कहते हैं कि हम बिहेवियर को स्टडी कर कर लोगों की, उनसे वो चीज करा सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। अब देखिए बोलते क्या है, गिव मी अ डोजन इन्फेंट एंड वेल इन्फॉर्म्ड एंड माई ओन स्पेसिफाइड वर्ल्ड टू ब्रिंग देम अप इन एंड आई विल गारंटी टू मेक एनी वन ऑफ रैंडम एंड ट्रेन हिम टू बिकम टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट। I might select one doctor, lawyer, artist, thief, regardless of his talent and race of ancestors. वो कहते हैं कोई सा भी बच्चा मुझे दे दो, कोई भी इन्फेंट, और मैं गारंटी करता हूँ मैं उसे बहुत ही अच्छा कुछ भी ट्रेन करके उसके बिहेवियर को मोल्ड कर कर मैं वो बना सकता हूँ जो वो करना चाहता है। तो ये पूरा स्ट्रेस किस पे ले करते हैं, बिहेवियर पे, एंड ही वॉज अ बिहेवियरिस्ट। फिफ्थ वन इज गेस्टालिज्म। वॉर्टहाइमर जो थे, इन्होंने गेस्टालवाद दिया है, ठीक है। फाउंडर ऑफ गेस्टाल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इज वॉर्टहाइमर। फिर गेस्टाल जो है बेटा वो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है परसेप्शन एज अ होल, परसेप्शन एज अ होल ही किसका मतलब है, गेस्टाल। नाउ इनके जो फॉलोअर्स थे वो कौन है, कॉलर। कॉलर को हम जैसे चाहते हैं इनसाइट लर्निंग थ्योरी, जो इन्होंने किस पे दी थी, चिंपैंजी पे। फिर कॉफका एंड लेविन, ये सारे तीनों क्या है, फॉलोअर्स हैं किसके, वॉर्टहाइमर के। देन ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आता है जो कि हमारा 6th स्कूल है, कार्ल रॉगर्स, फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, इब्राहिम मॉस्लो एंड कार्ल रॉगर। ये क्या बिलीव करते हैं कि फ्री विल एंड गाइडेड बिहेवियर आर सिग्निफिकेंट टू स्टडी। इनका एक ही थॉट है कि फ्री विल और गाइडेड बिहेवियर क्या है, सिग्निफिकेंट है किसके लिए, स्टडी के लिए, राइट। फिर आता है हमारा 7th हॉर्मिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ये MC दुग्गल का है, और ये किस पे स्ट्रेस लेट करते हैं, हमारी इंस्टिंक्ट्स, कि हमारी इंस्टिंक्ट्स क्या बोल रही हैं, ये इनका मेन स्ट्रेस उस चीज पर है। Therefore, sometime called theory of instinct। ये क्वेश्चन आ सकता है which is known as the theory of instinct, कौन से स्कूल को बोला जा सकता है, तो आप क्या बोलोगे उसको, हॉर्मिक स्कूल, ठीक है। फिर इनका जो मेन पर्पस है वो दो पर्पस है। फर्स्ट इज फोरसाइट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सर्टेन एक्शन, कि कोई सर्टेन एक्शन है तो उसके रिजल्ट पे फोरसाइट करना, और फिर डिजायर फॉर दैट रिजल्ट, क्या डिजायर है उस रिजल्ट के लिए। तो ये होते हैं हमारे स्कूल्स, ठीक है। 8th वन इज connectivism, focuses on the learner's ability to frequently source and update accurate information। ये क्या बोलता है कि लर्नर्स में ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको क्या कर सके, अपडेट कर सके, उसमें रिफॉर्म्स ला सके, राइट। देन टीचर्स कैन यूज डिजिटल मीडिया टू मेक गुड पॉजिटिव कनेक्शंस टू द लर्नर। एक अच्छे और पॉजिटिव कनेक्शन बनाने के लिए टीचर क्या इस्तेमाल कर सकती है, लर्नर के साथ यू डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर सकती है। ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 के अंदर बाय जॉर्ज साइमंस एंड स्टीफन डाउन्स, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था 2005 के अंदर। अब ऐसे फोर्सेस क्या है साइकोलॉजी के अंदर जो इसको वर्क करने के लिए वो करते हैं। तो इसके जो फोर्सेस हैं वो 3 तरीके के फोर्सेस हैं, दैट इज साइको एनालिसिस फोर्स, बिहेवियरलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। ये 3 फोर्सेस हैं साइकोलॉजी के। एंड विद दिस वी आर डन विद आवर टॉपिक टुडे, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इन दिस topic we have discussed about what is educational psychology, what is psychology, schools of psychology. I hope you have understood. If you people like my videos and content, then please do like, share and subscribe to my channel. And those who are new to my channel, please subscribe it and also share this channel to your near and dear ones who need videos like that. Thank you for watching.